Assalamu alaikum class 6. I hope you all will be fine. And today we are going to start the new chapter, that is composition of air and its importance. I hope you will completed your all the previous work of the previous chapter. And today we are going to start the new chapter, that is composition of air and its importance. What is air? Why it is important? As we all know that air is around us. हमारे आसपास जो है वो क्या है? हवा है. हवा means air, and air is a mixture of different gases. Now, first of all, the first thing, that is, what is atmosphere? What is atmosphere? Like, it is tends up to 600 to 8 kilometer. 8 kilometer from the earth's surface. The atmosphere of the earth is divided into 5 layers. जो हमारे अर्थ से about 800 से 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो कि हमारी 5 different layers पर डिपेंड करता है. The first one is the troposphere. The second one is the stratosphere. Troposphere, the closest layer to the earth, as you see in the picture, that is the troposphere. Troposphere, which is closest to the earth. The next one is the stratosphere. The next layer to the troposphere is the stratosphere. The third layer is called the mesosphere, and it is the coldest of all. सबसे ज्यादा जो ठंडी लेयर है आपकी वो mesosphere होती है. The fourth layer of the atmosphere is the thermosphere, which is the hottest of all. That's why its name is thermo. Thermo means temperature, गर्म. सबसे ज्यादा जो hot layer है वो हमारे पास thermosphere है. सबसे ज्यादा cold layer है, that is the mesosphere. The last layer of the atmosphere is the exosphere. It is very low atmospheric. It is very low atmospheric. Like जो सबसे last आपकी layer है, that is exosphere. That is exosphere. The next layer is the exosphere. The first one is the troposphere, then stratosphere, then mesosphere, and then thermosphere and exosphere. Now, what is air? Air is a mixture of, as I told you, मैंने अभी आपको बताया है कि एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, जिसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन आपके पास होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सब जानते ही हैं कि हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, बाहर निकलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के नतीजे में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं. ये तो गैसेस हवा में मौजूद है, बट बिसाइड दीज गैसेस सम अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, argon, and some noble gases are also present in the air. Beside these gases, some water vapors are also present in the air. Nitrogen and oxygen make up about 99% of the air. जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में गैसेस हमारे पास मौजूद होती हैं वो होती हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस फॉर्म द रिमेनिंग 1% ऑफ द गैस एयर. These gases are not chemically combined in the air. ये एक दूसरे से combine नहीं होती, but separately air में present होती हैं. The composition of air is not constant and can vary from place to place. एक जगह से दूसरी जगह की हवा जो है वो वेरी करती है, कि जरूरी नहीं है कि जो हवा कराची की होगी वही पंजाब की होगी. उनकी हवा में, उनके एटमॉस्फेयर में चेंजेस होती हैं. ऑब्वियसली बात है, जब चेंजेस होंगे तो आपको जो वहां पे गैस की कंसंट्रेशन है वो भी चेंज मिलेंगी. अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल चार्ट गिवन है जिसमें आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन जो है वो आपको 78% एयर में प्रेजेंट होती है. ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे है, दैट इज 21%. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड
argon and other noble gases are 0.93%. These gases are present in the air. As I told you, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा भी हवा में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक, ये भी हवा का ही हिस्सा है। अगर ये चीजें हवा में मौजूद होंगी, अगर ज्यादा स्मोक होगा तो हम कहेंगे कि पॉल्यूटेड एयर है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा है तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एयर है। इफ देयर इज लेस नंबर ऑफ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल, दैट इज द no not that much polluted air. Okay, the next thing is the water vapor. अगर किसी हवा में water vapor ज्यादा होंगे तो वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है कि हवा में मौजूद वाटर वेपर्स का कितना अमाउंट उसमें मौजूद है, वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी कहलाता है। रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। The places near the sea will be more humid air as compared to the other. अब जब सी समुद्र के करीब जाते हैं तो वहां की हवा में नमी, अगर मैं आपको उर्दू में कहूँ तो ह्यूमिडिटी का मतलब है कि नमी। नमी मतलब वहां पे वाटर वेपर ज्यादा होते हैं। लाइक अगर आप वहां पे जाते हैं तो हवा से आपका मुंह थोड़ा सा आपको स्टिकी फील होता है, कि चिपचिप फील होता है, कि कुछ स्टिकी स्टिकी सा हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर वेपर्स की जो कंसंट्रेशन है वो हवा में ज्यादा होती है। और वो वाटर वेपर्स कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली समंदर से आते हैं, और वो एवोपरेट होकर हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। ह्यूमिड एयर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। और जो ह्यूमिड एयर जहाँ पे ज्यादा होती है वहां पे क्लाउड ज्यादा बनते हैं और वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है। ओके जी, नेक्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। कैसे हार्मफुल हो सकती है? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर नीड्स टू बी मेंटेन। इसको मेंटेन रखना जरूरी है, अदरवाइज इट इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इफेक्ट करती है। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। हमारे पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। High levels of carbon dioxide in the air will increase in the temperature of earth, which cause the global warming. ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। इट हैपेंस बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब द रेज ऑफ सन। क्योंकि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उतनी ही ज्यादा सूरज से आने वाली रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अर्थ की आपकी जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देगी। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड अब आती कहाँ से? एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस होती है वो ह्यूमन एक्टिविटी से ही प्रोड्यूस होती है। हम जो फ्यूल्स बर्न करते हैं, अपने व्हीकल्स यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में बर्निंग करते हैं, उन सब के रिजल्ट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और अल्टीमेटली वो ऑब्वियस सी बात है कि एयर में ही मिक्स होती है। और जब वो एयर में मिक्स होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा सनरेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी। इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ह्यूमन बींग्स को अपनी तरफ से कम कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया में, अपने जो भी हमारे जगह है उधर प्लांट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करने चाहिए। क्योंकि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। एज यू ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हमारी एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूटेड होगा। जब और अगर वहां पे ट्रीज या प्लांट्स होंगे तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यूज कर लेंगे हमारे एटमॉस्फेयर से, और एयर से जितनी भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होने से बच सकती है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो डिफरेंट गैसेस एयर में मौजूद है, एज आई टोल्ड यू, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको गिवन है आपकी बुक में, और कुछ यूजेस हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह की ये होती है और इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। इट इज डज नॉट हैविंग एनी, इसका ना कोई कलर होता है, ना कोई स्मेल होती है और ना ही कोई टेस्ट होता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली ये गैस है एयर में। इनर्ट गैस, डज नॉट रिएक्ट इजीली, किसी और सब्सटेंस से इजीली रिएक्ट नहीं करती। डज नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। लाइक अगर कहीं आग जल रही है और वहां नाइट्रोजन गैस मौजूद हो तो वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, लाइक और आग को बढ़ाती नहीं है, वाटर में सॉल्युबल है। यूज कहाँ कहाँ हम इसे करते हैं? इट इज यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर,
to preserve food. Nitrogen is used in preparation of some antibiotics. Some antibiotics use बनाने में भी हम इसे use करते हैं. It is also used in some electronic devices like CPU, prevent it from overheating. It is used in dyes and explosives. Explosives में भी यूज होता है और डाइज में भी यूज होता है. अच्छा जी, अब हम सेकेंड चीज आ जाते हैं, हमारे पास है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन गैस? अगेन ऑक्सीजन इज ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस. ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, ना ही कोई स्मेल होती है और ना ही इसका कोई कलर होता है. इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर and it is also the major component of our respiratory system and our body as well. Reacts readily with the other substance. दूसरे कोई भी substance हो उसके साथ फौरन react कर लेता है. Causes the rusting of an iron. आयरन की जो रस्टिंग है, जंग लग जाता है, वो कौन सी गैस की वजह से होता है? ऑक्सीजन गैस की वजह से होता है. आयरन की रस्टिंग मींस ये जंग लगना, जो लोहे पे जंग लग जाता है, वो किस गैस की वजह से होता है? ऑक्सीजन गैस की वजह से होता है. हवा में मौजूद गैस जो है ऑक्सीजन गैस, वो उस आयरन के साथ रिएक्ट करती है और वहां पे उसकी रस्टिंग कॉज करती है. डज नॉट सपोर्ट इन बर्निंग बट डज नॉट बर्न इटसेल्फ. खुद ये बर्निंग में भी हेल्प नहीं कर. डज सपोर्ट इन बर्निंग. अगर कहीं आग लग रही है और वहां तेज हवा चल रही हो, मींस कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो मजीद उस आग को बढ़ा सकती है. सॉल्युबल इन वाटर. It is used by animal and plants for respiration. As you all know that it is used for welding and cutting metal. It is used in the combination with the other gases in cylinder by sea driver, mountain climber and astronauts for breathing. Like हम इसको सिलेंडर में भी, आपको पता है हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इसको यूज करते हैं. उसमें ऑक्सीजन ही फिलअप होती है. एस्ट्रोनॉट्स जो वो अर्थ से स्पेस में जाते हैं तो वो भी ऑक्सीजन को फिल करके ले जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. ओके जी, द नेक्स्ट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड. अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, डेंसर देन एयर. हैवी होती है, डेंसर मींस हैवी होती है. नाइदर बर्न्स, नॉट सपोर्ट बर्निंग. इसको हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, आप देखते होंगे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि ये फौरी तौर पे आग को बुझाने के लिए यूज की जाती है. ठीक है जी. इट इज यूज्ड फॉर प्लांट मेकिंग फूड. इट इज यूज्ड इन मेकिंग कार्बोनेट ड्रिंक्स. लाइक जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. It is used in the fire extinguisher to put out the fires. Solid form of carbon dioxide called dry ice and is used for preserving food. Food को preserve करने के लिए भी इसे use किया जाता है. अच्छा जी, जो next हमारे पास gases हैं, that is argon and noble gases. Colorless, odorless, again chemically inactive, do not react with the other substance. Non-flammable, very low density. Helium is used to fill air balloons and airships. आपने वो balloons तो देखे ही होंगे जिनको अगर हम छोड़ दें तो वो हवा में चले जाते हैं. उनमें जो गैस होती है वो हीलियम गैस होती है. ठीक है जी, हीलियम गैस होती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट होती है और फौरन से ये एयर में ट्रेवल कर जाती है. नियॉन इज यूज्ड इन साइन बोर्ड्स. Xenon is used in flash bulbs and laser lights आप यूज करते हैं, उसमें नियॉन गैस यूज होती है. आर्गन इज यूज्ड इन फिलामेंट बल्ब. अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने आपको बताया जो एयर में हमारे पास चीज मौजूद होती है, दैट इज वाटर वेपर. वाटर वेपर अगेन आप देख नहीं सकते, ना ही इनको स्मेल कर सकते हैं. इनकी डेंसिटी भी वेरी लो होती है. वाटर वेपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द रेन एंड द वेदर चेंज. अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. अब हवा क्यों जरूरी है? ये तो अब सबको ही पता है कि हवा क्यों जरूरी है. हवा नहीं होगी तो सफोकेशन हो सकती है, दम घुट सकता है, आप जो है वो बेहोश हो सकते हैं. और अगर ज्यादा ही एयर की आपके पास नहीं है, इनहेल और इनटेक लाइक वेंटिलेशन नहीं है, तो वहां पे डेथ भी कॉज हो सकती है. क्योंकि अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप एक टाइम तक ही उसमें मौजूद ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं. आप उस रूम में मौजूद सारी ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जो है वो फिलअप कर देंगे. फिर एक टाइम आएगा कि जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. तो हवा जो है वो हर लिविंग बीइंग, आइदर वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, इंसेक्ट्स हो, कोई भी हो ऑर्गेनिज्म, उसके लिए हवा जरूरी है. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन अर्थ. जमीन पर रहने के लिए हवा जरूरी है क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो हवा में मौजूद है, जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है. As the human
Breathe in the air. They use oxygen for respiration. Carbon dioxide in the air help plant. Ozone in the atmosphere protects the earth from the harmful rays of the sun by absorbing or reflecting the rays back to the space. It prevents the earth from getting too hot and too cold. The process of combustion cannot be carried without air, as oxygen in air सपोर्ट कंबशन. अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है. ठीक है, जितनी ज्यादा तेज हवा होगी आग उतनी ही ज्यादा तेज हो सकती है, क्योंकि उसमें मौजूद ऑक्सीजन का अमाउंट भी उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है जी. एयर ऑल्सो हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट वेदर पैटर्न विच आर क्रिएटेड ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी. मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, जिसे हम हवा कहते हैं, हवा चल रही है. ठीक है जी. विच हेल्प्स एयरप्लेन्स टू फ्लाई, शिप्स एंड बोट्स टू सेल एंड पैराशूट्स टू ग्लाइड. ठीक है जी. जितनी अच्छी हवा की, जो कहते हैं ना जहाँ का हवा का रुख होता है वहीं पे जो आपका जो पैराशूट है वो मूव करता है. लाइक इस तरह की जो सेलिंग बोट होती है वो भी हवा के अकॉर्डिंग ही मूव करती है. जिस तरह हवा मूव करती है, ज्यादा तेज हवा होगी तो ये भी ज्यादा तेज जो है वो मूव करेंगी, और कम होगी तो कम मूव करेंगी. कंबशन को, लाइक जलने के प्रोसेस को ये जो है वो सपोर्ट करता है, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है और ऑक्सीजन जो है वो आपकी बर्निंग को इंक्रीज करता है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, इनमें जिसमें मैंने आपको बताया कि हवा क्या है, कंपोजिशन ऑफ एयर, व्हाट इज द एयर, एयर क्या चीज है, एयर की कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी गैसेस आपके पास मौजूद है. ठीक है जी. इसके अलावा हवा हमारे लिए क्यों जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से क्या हो सकता है, डिक्रीज किस तरह से हम इसे कर सकते हैं, और आपके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है आपके एयर में, कितनी कौन सी गैसेस कितने कितने कंसंट्रेशन से प्रेजेंट है. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन प्लीज. इस चैप्टर को अगेन एंड अगेन रीड कीजिए अपने अपने घर में, और जो होमवर्क असाइनमेंट, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपके होम असाइनमेंट में दिए हैं उसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट कीजिए, और तमाम क्वेश्चन आंसर्स को लर्न भी कीजिएगा. बी प्रिपेयर फॉर द पेपर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो कीप डूइंग योर वर्क एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Until that, for the next lecture, Allah Hafiz.